वंदे गुजरात। नमस्कार मित्रों, I am Sanjay Gupta, working as a professor and head of the Department of Accreditation at Children's University. My total working experience is of 18 years, wherein I have worked as a lecturer, as a professor, as a principal, and as an associate professor from time to time. I have started series of National Education Policy 2020, in which this is third session I am going to start with. National Education Policy 2020 is presented in the year 2020, this year only. It has been divided into two parts, that is school education and higher education. I will take upon higher education. See, I have already completed 57 points out of 106 points I have identified from this particular policy. Next point is bridge course will be developed for students who come from disadvantaged educational background. You might have seen that in entire policy, importance is given to socially and educationally disadvantaged group of students. Especially they are disadvantaged because they don't get the facility of education, especially facility of higher education, because of financial crisis or financial limitations in their home. So government understand that without giving them proper education, we cannot take their benefit for national development, and they themselves cannot develop and cannot develop their society. So whenever they come for education, it is presumed here that they lack in certain education because they did not get proper advantage of all facilities earlier. In order to bridge up that, in order to bridge that gap what they don't learn, bridge course will be developed for such students, and these bridge course will see that no socially and educationally disadvantaged group student remain behind, lag behind. To cover up that, these bridge course would be developed. So it is written that bridge course will be developed for students who come from disadvantaged educational background. Next point is it would be ensured that all buildings and facilities are disabled friendly. See, these disabled people, we just sometimes call Divyang also. Fine. On one side, they are Divyang, means they are challenging, they have some natural problems. When I say problem, it is because of nature, it is not none of their part because of what they are challenged one. तो एक तरफ तो वो ऑलरेडी तकलीफ़ में है और दूसरी तरफ जब उनको पढ़ना हो और उनको चाहिए वैसी फैसिलिटी ना मिले तो उनके लिए पढ़ना डबल चैलेंज हो जाता है. तो फॉर दैट रीज़न इट हैज़ बीन सेड दैट कि बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़ वुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट दे आर डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड दे कैन गेट मोटिवेटेड टू स्टडी मोर एंड मोर. Next is, we know gender ratio in higher education in India is still uneven. We see that more boys are studying at national level. I am not talking about specific state, and girls are studying less. So what we believe is girls and boys both have to contribute equally. When I say equally, means up to their competence, up to their capability. But if girls do not take admission in higher education, because of that their potential will not be used for development of the nation. So in order to avoid this type of situation and in order to provide them opportunity to do something big, to learn something, gender balance would be enhanced in admissions to higher education institutions. मतलब ये देखा जाएगा कि जेंडर इम्बैलेंस ना रहे.
अगर imbalance है तो certain incentives, certain things, certain steps would be taken to bring gender balance in the admissions of higher education. Next is more high quality higher education institutions, specific district and special education zone for socially and disadvantaged group will be established. Here are 2 points. One is districts for socially and disadvantaged group. तो हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे. दोज डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन and these institutions will benefit to socially and educationally disadvantaged group of students. And at the same time special education zone भी बनाए जाएंगे and they will also benefit the socially and educationally disadvantaged group. So in that way this step to bring up to elevate the level of to educate the socially and educationally disadvantaged group is very important, and we know it's handsome, it's I mean to say it's very significant part of our entire population. तो गवर्नमेंट का प्लान है ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाना और ऐसे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना जिनके अंदर सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके. नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम will be integrated into mainstream education in all education institutions. We know what is happening. आज हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर उनको किसी वोकेशनल कोई वोकेशन दिया जाए जिसके अंदर वो लोग अपना परफॉर्मेंस दे सकें तो वो लोग तैयार नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है. So now the focus is that vocational education program would be mainstreamed, means would be integrated into mainstream. जो हमारा पूरा एजुकेशन है स्कूल लेवल का, हायर एजुकेशन का, उस सब में वोकेशनल एजुकेशन को साथ में लाया जाए, जिससे कि ये ना हो कि वो लोग पढ़ाई तो कर लें पर उनके पास अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए या जॉब करने के लिए कोई कॉम्पिटेंसी ना हो, कोई एबिलिटी ना हो. तो वोकेशनल एजुकेशन को इस तरीके से हर लेवल पर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, भले ही वो स्कूल लेवल हो, हायर सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, हर जगह वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम. सो अभी हमने बात की कि वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. अब हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसका आउटकम कम से कम डिसाइड है, जो कम से कम आउटकम डिसाइड है वो है एटलीस्ट 50% लर्नर्स, उनको कम से कम वोकेशनल एजुकेशन मिलना ही चाहिए स्कूल और हायर एजुकेशन में मिलाकर. मतलब वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना है, वो टारगेट बेस्ड करना है कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑफ ईच टू और एवरी नेक्स्ट स्टूडेंट शुड बी वोकेशनली कॉम्पिटेंट. उनको स्कूल या कॉलेज लेवल पर वोकेशन का क्या मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, और वो तैयार होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, अपने जो भी उसको काम करना है फ्यूचर में उसके लिए. उसकी एजुकेशन ऐसी ना हो कि बहुत सारी पढ़ाई है लेकिन वो किसी काम की नहीं. हमने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी हम सब ने कि कोई बच्चा आता है कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है. फिर उससे पूछा जाता है कि आपको क्या आता है, तो बोले मैं ग्रेजुएट हूँ, पर वो काम करना वो ये नहीं बता पाता कि उसे क्या आता है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिलती. तो ये सीरियस प्रॉब्लम है. उसके लिए ये पॉलिसी ने कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज के हर लेवल के साथ जोड़ा जाएगा और कम से कम 50% स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाएगा, सही में उनको दिया जाएगा एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा. नेक्स्ट इज वोकेशनल कोर्सेज will also be available to students enrolled in all other bachelor degree program. जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है 3 इयर्स वाले हैं या 4 इयर्स वाले हैं, जहाँ भी चलते हैं, हर बैचलर प्रोग्राम के अंदर वोकेशनल कोर्स को
इंटरलिंक किया जाएगा। मतलब कि ऐसा जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होकर बाहर आता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसके पास वोकेशनल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि उस वो कॉम्पिटेंसी है तो वो अच्छी तरह कोई भी जॉब कर पाएगा और वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो पाएगा। सो ये स्कूल लेवल, स्कूल के भी डिफरेंट लेवल्स, वैसे ही हायर एजुकेशन लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन, हर जगह वोकेशनल एजुकेशन को इंटरलिंक किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड पर्पज इज स्टूडेंट्स कैन बिकम more employable and students can earn their livelihood easily and comfortably, जिससे कि बेरोजगारी के जो इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ घट सकें और एजुकेशन सीधी बच्चों के काम आ सके। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन ऑल सेकेंडरी स्कूल्स। जैसे हमने देखा कि अभी ग्रेजुएशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन देनी थी, तो यहाँ पर हमने स्कूल की बात की है कि सारे सेकेंडरी स्कूल्स में भी वोकेशनल एजुकेशन होगी। और ये जो वोकेशनल एजुकेशन होगी ये ऐसी नहीं होगी कि बस स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं और कोई नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वोकेशनल एजुकेशन ऐसा होगा कि कम से कम हर 2 में से 1 बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन के लिए अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन को प्लान किया जाएगा। सो इट इज़ वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन ऑल सेकेंडरी स्कूल्स इन फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डेकेड। आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे करते हुए इसको स्कूल लेवल पर हर जगह इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि सिंपली स्कूल पढ़ा हुआ बच्चा, 11th-12th पास किया हुआ बच्चा भी अपनी लाइफ के लिए, लाइफ को जॉब के लिए, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए कुछ ऐसा कर सके कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल कंडक्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज। अगेन देखो ये वोकेशन की ही बात है, अलग तरीके से है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल कंडक्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग सॉफ्ट स्किल। मतलब कि कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को सर्टिफिकेट कोर्स चलाने, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स चलाने, और वो कोर्स कैसे होंगे? स्किल बेस होंगे। स्किल होगी तो बच्चा अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा। तो स्किल को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाने हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्किल मतलब सिर्फ वोकेशनल, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, बट इतना है कि वो बेहतर एम्प्लॉयबल हो जाएगा। ये पर्पज़ है दिस वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट है लोक विद्या। लोक विद्या मतलब क्या है? वो वोकेशनल नॉलेज जो इंडिया में इंडिया के लोगों की है, इंडिया की जनरेशन से जनरेशन्स की है, उस लोक विद्या या उसको हम लोक विद्या कहते हैं। तो उसको क्या करना जाएगा? उसको भी एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसलिए लिखा है लोक विद्या दैट इज़ इम्पोर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया will be made accessible to students through integration into vocational education program। तो इंडियन लोक विद्या को वोकेशनल प्रोग्राम के साथ इस तरह से लिंक किया जाएगा कि स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट ले सकें और अपने आप को कैपेबल और कॉम्पिटेंट बना सकें। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ODL मीन्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड विल आल्सो बी एक्सप्लोर्ड। स्टेटमेंट से ही लगता है कि गवर्नमेंट कुछ क्लेम नहीं कर रही है, लेकिन एक बात जो कहना चाहती है पॉलिसी के माध्यम से कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में वोकेशनल एजुकेशन को कैसे दिया जाएगा, इस पर भी सोच विचार किया जाएगा। और अगर संभव होगा तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी लाभ वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए किया जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में, हमारे देश में ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, उन तक भी ये बेनिफिट पहुंचना चाहिए। शायद यही इंटेंशन है गवर्नमेंट का, यही इंटेंशन है पॉलिसी मेकर्स का कि ODL में भी वोकेशनल एजुकेशन अगर पॉसिबल हो तो उसको इम्प्लीमेंट, उसको ऐड करना, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल्स विल कोलैबोरेट विद ITIs, पॉलीटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्री। ये आप देख रहे हो, ये सारा वोकेशन की ही बात हो रही है, वोकेशनल एजुकेशन बढ़ाने की बात हो रही है।
जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको कोलैबोरेट किया जाएगा आईटीआईज़ के साथ, पॉलिटेक्निक्स के साथ, लोकल इंडस्ट्री के साथ। जैसे हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप है, कुछ उस तरीके से, नॉट एग्जैक्टली इंटर्नशिप बट कुछ उस तरीके से जो बाहर हमारे स्कूल के बाहर जो टेक्निकल स्किल पड़ी हैं वो स्कूल के साथ जोड़ी जाएंगी, और जिससे कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से उन स्किल्स में तैयार हो सकें, आईटीआई के माध्यम से, पॉलिटेक्निक्स के माध्यम से, लोकल इंडस्ट्री के माध्यम से, या और कोई भी एवेन्यू ऐसा है उसके माध्यम से, जिससे बच्चों के अंदर वोकेशनल स्किल या टेक्निकल स्किल को डेवलप किया जा सके। उसके बाद है स्किल लैब्स विल ऑल्सो बी सेटअप एंड क्रिएटेड इन द स्कूल्स। स्किल लैब्स बनाई जाएंगी स्कूल्स के अंदर, और उन स्किल लैब्स का बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। इसे स्पोक मॉडल भी कहते हैं, जिससे कि बच्चे स्किल्ड रहें, वो सिर्फ किताबी ज्ञान उनके पास ना हो। दे शुड नॉट बी लाइक बुकवर्म ओनली, दे शुड नॉट बी लाइक having only theoretical knowledge, they must be having hand-on experience of certain things, so that whenever they are in the in employment market, they can get something to earn and they can make their life prosperous and happy. Next is dropouts from formal system will be reintegrated बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मल सिस्टम में ही नहीं हैं, किसी कारण से फॉर्मल सिस्टम से निकल गए हैं, भले ही वो आर्थिक कारण रहे हों या उनके कोई व्यक्तिगत कारण रहे हों, उनको भी ऐसा नहीं मान लेना है कि अब ये निकल गए तो अब ये किसी काम के नहीं है। उनको रीइंटीग्रेट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो जो भी कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको लेकर भी वापस से उनको फॉर्मल सिस्टम में ले लाया जाएगा, और उसके अंदर उनको एजुकेशन देना, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा, जिससे हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति देश के डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ करे। आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट, एवरी चाइल्ड मैटर्स। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट है कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है। तो जो भी कोई बच्चा है वो ड्रॉप आउट है, सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है, एससी है, एसटी है, किसी भी रीजन से कोई भी बच्चा देश के विकास में अपना योगदान ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात कही गई है कि ड्रॉप आउट्स को भी सिस्टम से वापस से जोड़ा जाएगा। उसके बाद MHRD विल कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCIVE। MHRD क्या करेगी? नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के इंटीग्रेशन के लिए कमिटी बनाएगी, जिससे कि वोकेशनल एजुकेशन को और जोर मिले, और फिर वो NCIVE जो बॉडी है वो बॉडी काम करेगी, वो देखेगी कि वोकेशनल एजुकेशन किस तरह से प्रॉस्परस होता है, उसको अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उनको सॉल्व करना है, उसके लिए जो भी कुछ करना है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए ये कमिटी MHRD कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उसके बाद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बी डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच डिसिप्लिन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। हर डिसिप्लिन में वोकेशन एंड प्रोफेशन को जोड़ा जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, डेवलप किया जा सके, उसके लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के आधार पर जो वोकेशन है उसके अंदर जो भी संस्थाएं हैं या जो भी डिसिप्लिन है उनके अंदर वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो रिसर्च होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लोगों का ऐसा भाव जरूर होता है कहने का, हो सकता है ना होती हों, ऐसा नहीं है कि हर जगह सारी रिसर्च ऐसी ही होती हैं, बट सर्टेन रिसर्चेज माइट बी लाइक दैट। सरकार या तो पॉलिसी उनको भी अनदेखा नहीं करना चाहती, इसलिए लिखा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक रिसर्च जो हो वो क्वालिटी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, हर फील्ड में हो, उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो
हमारी क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करेगा, हर फील्ड की क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करेगा। हमारे करिकुलम होंगे वो रिसर्च बेस्ड होंगे, हमारा ट्रांजैक्शन होगा जो हम पढ़ाते हैं वो तरीके हमारे रिसर्च बेस्ड होंगे, हमारे आउटपुट होंगे वो रिसर्च बेस्ड होंगे, और उसकी वजह से हमारा व्यक्ति का, समाज का, संस्थाओं का, सबका अपने आप विकास होगा। Next is, according to this policy, quality and quantity of research will be transformed in India. ये पॉलिसी क्या करने वाली है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। जो भी क्वालिटी है इंडिया के अंदर, उस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा रिसर्च की। इसीलिए तो NRF बनाया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और रिसर्च को बढ़ाया, रिसर्चेज को बढ़ाया भी जाएगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता सुधार दी गई वो काफ़ी है। गुणवत्ता तो सुधारनी ही है, बट एट द सेम टाइम उसकी संख्या भी बढ़ानी है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी है। तो उसके लिए NRF कॉन्स्टेंटली काम करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कॉन्स्टेंटली काम करेगा। इससे जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज हैं वो इम्प्रूव होंगी, और फ्यूचर रिसर्चेज हैं जो होने वाली हैं वो बेटर क्वालिटी की होंगी, और वो रिसर्चेज बढ़ेंगी भी सही, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और इसकी वजह से हमारा जो ओरिएंटेशन है वो हर चीज़ में रिसर्च बेस्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर रिसर्च एंड इंटर्नशिप विल बी इंक्लूडेड इन अंडर ग्रेजुएट करिकुलम। जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनके अंदर भी रिसर्च और इंटर्नशिप इनको जोड़ा जाएगा। अगर आप देखो तो हमारा करंट सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि रिसर्च वगैरह और इंटर्नशिप वगैरह हायर एजुकेशन के लेवल पर जो हमारा PhDs हैं या मास्टर डिग्री हैं उनमें ज़्यादा आता है, बट UG लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर नहीं आता है। तो रिसर्च एंड इंटर्नशिप को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी प्रमोट किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होगा। इससे जो बच्चे हैं उनका रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, रिसर्च करना सीखेंगे वो लोग, और उनका जो पूरा बिहेवियर है वो साइंटिफिक बनेगा, और वो लोग समाज के लिए और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, मानव जाति के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। और लास्ट स्लाइड अभी के लिए लास्ट है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप। हायर एजुकेशन, इंडिया का हायर एजुकेशन के बारे में हमने बात की कि इंडिया का हायर एजुकेशन दुनिया के हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो उसके लिए भी कमीशन बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन विल बी सेटअप, जिससे कि उसको और बढ़ाया जा सके, उसको और समृद्ध किया जा सके, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसको पढ़ना था लेकिन वो रह गया क्योंकि कुछ के लिए कुछ कारण रह गए। अगर वो कुछ कारण रह जाते हैं तो वो कारण देखने का काम है हायर एजुकेशन कमीशन का, और कमीशन कोशिश करेगा कि सबको लाए। इसीलिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात कही गई है, लगभग डबल करने की बात कही गई है आगे आने वाले सालों में। नेक्स्ट है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी सेटअप। हमारा हायर एजुकेशन है ही इतना बड़ा, और उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास, और हमारी जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर बहुत स्कोप है उसको बढ़ाने का भी। तो जब हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमारे पास यंगस्टर्स हैं, वी आर दी कंट्री विद मैक्सिमम यंग पीपल। तो ऐसे में वो जो यंग लोग हैं उनको, उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश की जाएगी। जैसे रिसर्च काउंसिल बनेगी वैसे ही हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनेगी, और वो हायर एजुकेशन को इन टोटो, इन जनरल सब जगह से देखेगी कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, हायर एजुकेशन को किस तरीके से प्रॉस्पर किया जा सकता है। और अभी के लिए, इस सेशन के लिए लास्ट पॉइंट है कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल विल बी सेटअप। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से मतलब है, हमने पहले देखा कि हमारी गवर्नमेंट का एंटायर पर्पज़ ही है, हमारे देश का एंटायर पर्पज़ ही है कि हम इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट कर दें, ऑटोनॉमी दे दें। लेकिन ऑटोनॉमी ऐसा तो नहीं कि हमने कोई पैसा है कि हमने उठाकर दे दिया। पैसा भी अगर हम किसी को बिना सोचे समझे दे देते हैं तो क्या होता है, अगर उसका मिसयूज़ होता है तो कोई मतलब नहीं है वो पैसे देने का, उल्टा उससे नुकसान होगा। वैसे ही ऑटोनॉमी भी अगर बिना सोचे समझे दी गई तो वो बेकार है,
उससे उल्टा नुकसान होगा, समाज का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऑटोनॉमी देने के लिए क्या ज़रूरी है कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई जाए, और वो जो काउंसिल है वो काउंसिल देखेगी कि एक्रेडिटेशन हो, प्रॉपर एक्रेडिटेशन हो, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में उसका सारी संस्थाएं हैं उनका एक्रेडिटेशन हो, और उनको ऑटोनॉमी दी जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके। बस आज के लिए, इस सेशन के लिए बस इतना ही। आभार। मुझे आशा है कि आपको काफ़ी सारी बातें इसमें से ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, वो जानने का आपको अवसर मिला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।